Today I will explain you about some important LAQs, inshallah, which are going to come in our examination. जो frequently जो questions पूछ रहा हूँ, questions मैं यहाँ लिखा रहा हूँ. Question number 19 से आपके LAQs start होते हैं. Question number 19 में 3 LAQs में पढ़ा रहा हूँ. I will give you 2 LAQs from the question number 19. 19 से 2 LAQs में दे रहा हूँ आपको. First one and second one. कैसा भी ये 2 क्वेश्चन से क्वेश्चन इंशाल्लाह एग्जाम में आता. Among these 2 questions you will get 1 question in the examination. Frequently these questions are asked in the examination. What is the first one? You know that. Write the important postulates in the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model, and explain the hydrogen spectra. Hydrogen spectra. Hydrogen spectra. So this is the first question. This is from chapter number 1. ये क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है. 19 क्वेश्चन में ये तो भी आता है या नहीं तो ये 2 में से एक क्वेश्चन पक्का रहता है एग्जाम में. बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के साथ में. एंड सेकंड अबाउट दी एक्सप्लेन अबाउट दी और राइट द क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स and their significance. These are the 2 questions which are generally asked in the examination. Exam में ये 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके एनुअल नेक्स्ट एग्जाम में रहता है. नेक्स्ट एग्जाम में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज फ्रॉम द सेकंड चैप्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ये क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 20 में ये 3 LAQs है, A, B और C. ये 3 LAQs से एक LAQ कैसा भी रहता है. So what are those questions? In question number 20, what is the first question? Write the elements. How the elements are classified into various blocks. That is the SPDF classification. Classification of the elements into the various blocks. Classification. SPDF blocks classification है ये. The second question, define IE1 and IE2. Define IE1 and IE2. Continuation. Why IE2 value is more than IE1, and write the factors and explain the factors. Write the factors affecting IE values. So this is the second question in this chapter. And the third question, how the following, what is periodicity बोल के पूछ रहा. What is periodicity and how the following periodic properties changes, that is variation पूछ रहा. Changes in groups and periods. So this is the another question. ये 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह एग्जाम में रहता. कभी भी यही क्वेश्चंस पूछ रहा. क्वेश्चन नंबर 19 से, इन द क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट वन इज बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. द सेकंड वन इज क्वांटम नंबर. ये 2 में से एक कैसा भी 100%, ये 2 पढ़ लिए तो एक अटेंड हो जाते. आप एक का आंसर कर सकते. और सेकेंड चैप्टर से ये 3 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपके LAQs खत्म हो जाते हैं, यानी कि आप 2 LAQs अटेंड कर सकते. So in the second chapter I have given 3 LAQs. Which are those? First one is SPDF blocks classification, and second one is IE1 IE2 definition factors, and what is the third one? Periodic properties. We will explain these one by one. First you write the question number 21 also. In the question number 21 we may get
Question number 21 from the third chapter or from the organic chemistry. क्वेश्चन नंबर 21 में ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता हूं, कब तो भी आपको डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन बोल के पूछता हूं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आपको sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। What is hybridization and explain the hybridization in which sp orbitals are involved, ऐसा है क्वेश्चन ये। नहीं तो explain sp sp2 sp3 hybridization with example. So this is the one question and another question in this is from organic chemistry। 21st question organic से भी आ सकता, ऑर्गेनिक से ज्यादा आता, ये थोड़ा कम आ रहा। ऑर्गेनिक से कौन सा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हाउ बेंजीन, how benzene is prepared from acetylene, how benzene is prepared from acetylene and write electrophilic substitution reactions of benzene. This is the important question in this ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये भी पूछ रहा कौन सा है एसिटलीन, हाउ एसिटलीन इज प्रिपेयर्ड, that is C2H2, how acetylene is prepared and chemical properties and how it reacts with the following and chemical properties. I will explain one by one, आप याद रखिए आप। और या अगर ये नहीं आया तो how ethylene is prepared, C2H4 is prepared and इसके chemical properties रहते हैं, chemical properties of ethylene। So इंशाल्लाह इसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो इथलीन या तो एसिटलीन या तो बेंजीन या नहीं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन। दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रिपेयर होके रहे तो बस काफी है आपको। आप LAQs अटेंड कर सकते हैं, या नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के LAQs अच्छा पढ़ लिए पूरे 5 क्वेश्चंस, तो उसमें से 2 के 2 आंसर कर सकते हैं आप पक्का। तो फर्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में फर्स्ट वन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन शॉर्ट में, आप लोग पढ़े भी होंगे, फिर एक बार रिवीजन होता। तो इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सी हियर यू हैव टू राइट द 4 postulates, 4 postulate लिखे तो 4 मार्क्स आ जाते आपको। So which are those postulate, you have to see this, you have to write these 4 postulate। first one, in an atom nucleus is there, around this nucleus इलेक्ट्रॉन एक जगह रहते नहीं, अतराफ न्यूक्लियस के गोल गोल फिरते रहते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए विच पाथ, कैसा दिख रहा आपको, सर्कुलर दिख रहा आपको, इन ए सर्कुलर फिक्स्ड पाथ, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। सो इनको KLMNO ऐसा ये लेटर से लिखते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 ये वैल्यू से लिखते हैं। So this is about the first postulate। first postulate is the definition of orbits, इनको energy level बोल के भी बुला सकते। तो first postulate is in an atom electrons are revolving around the nucleus in a circular path with high velocity, those paths of electrons are called as orbits। this is the definition of orbits। these orbits are labeled with KLMNO or 1 2 3 4 etc। These are also called as energy level। इतना लिखिए आप फर्स्ट postulate में। और then what is the second postulate? second postulate, as long as electron is present in a particular orbit, एक ही जगह फिर रहा तो इसकी एनर्जी सेम रहती, कांस्टेंट रहती, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, जनरल कंडीशन में देता ना लेता। in general condition, as long as electron is revolving in a particular orbit, it does not radiates energy or absorbs energy। रेडिएट मतलब एनर्जी को रिलीज करता ना एनर्जी को लेता, तो इसीलिए इसको क्या बोल के बुलाते हैं ये ऑर्बिट्स को, और एक एक नाम भी दिया जाता है उनको, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल के बुलाते हैं। सो दिस इज द सेकंड postulate। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट postulate में ऑर्बिट का डेफिनेशन लिखना है और एनर्जी लेवल्स बोल के भी बोलते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट एंड सेकंड postulate इज द स्टेशनरी ऑर्बिट। एंड व्हाट इज द थर्ड postulate? इधर देखिए आप, थर्ड postulate
थर्ड पॉस्टुलेट में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है आप, वेन एवर द इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व द एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करा, इट मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल को जाके वहां पे फिरना शुरू हो जाता। व्हेन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर लिया, दे दिया, तो वो वापस फिर अपने स्टेट को आ जाता, फिर नीचे आ जाता है। ये लिखना है आपको। थर्ड postulate is the energy changes or frequency of energy, whatever it may be, आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको एनर्जी चेंजेस बल्कि सेट हेडिंग डाल के आप ये लिख सकते हैं, when electron absorbs the energy that moves lower to higher energy level, when electron radiates energy, releases energy, it jumps from higher to lower energy level. So एनर्जी डिफरेंस जो भी रहने दो उसको डेल्टा ई से लिखते। सो कितना होता है भाई एनर्जी, E2 माइनस E1, ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू h न्यू। दिस इज अनदर postulate, थर्ड postulate। देन फोर्थ postulate, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह फिर रहा, स्टेशनरी ऑर्बिट में फिर रहा, तो एंगुलर मोमेंटम को अपन ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट डज नॉट चेंजेस, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं बदलता। Electron when revolving in a stationary orbit, its angular momentum is given with this formula, mvr is equal to nh by 2 pi, where m is the mass, v is the velocity, r is the radius, and h is the Planck constant, n is the shell number. So this is about the 4 important postulates present in the Bohr's atomic model. These are the 4 postulates you have to write. What is the first postulate? Orbits. What is the second postulate? Second postulate is the stationary orbits. And what is the third one? Energy changes. When electron absorbs the energy, that goes to the higher. When electron releases the energy, that jump back to the lower energy level. Energy changes बल्कि वो लिखना। Now next one, angular momentum of electron in a stationary orbit is quantized, that is not changed. That is calculated with the formula mvr is equal to nh by 2 pi. सो और भी है postulate, मगर अभी ये 4 postulates जो है आप याद रखिए आप। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। मेरिट्स में देख लेना, दिस बोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन्स द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के फॉर्मुलेस देते बेटा। सो दिस इज अबाउट द मेरिट्स। तो इसके अंदर पहला जो मेरिट है, एक्सप्लेनेशन टू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। I'm explaining you about the hydrogen spectra. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या बोलना है आपको पहले, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन इलेक्ट्रिक बल्ब में हाइड्रोजन गैस को ले लिए भाई, हाइड्रोजन गैस ले लिए। व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास कर लिए, तो आप क्या करना, H2 स्प्लिट्स इनटू द एटम्स, H2 जो है बॉन्ड ब्रेक होके एटम्स के ऐसा फॉर्म हो जा रहा है, और द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेके हायर एनर्जी स्टेट को कहीं भी जा सकता, जितनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया वो उधर जाके फिरना शुरू हो जाता। सो ये फर्स्ट सेंटेंस लिखना है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, व्हेन हाइड्रोजन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज that is splits into the atom, H2 molecule splits into the atom, and the electron which is present in ground state absorbs the energy, goes to the excited levels, higher energy level को जाता, where this electron is unstable, ऊपर गया, सो जो भी एनर्जी लिया वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, फिर वो क्या करता, इट रेडिएट्स एनर्जी, उसकी अपनी एनर्जी देके फिर वापस ग्राउंड स्टेट को आता, थोड़ी देर के बाद ग्राउंड स्टेट को आता। जब वो वापस आ रहा तो फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ शेल को गया, समझिए फोर्थ लेवल में गया था, वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट को आ सकता, या नहीं तो फोर्थ को गया, सो फोर्थ से आपको 3 को जाके 3 से 2 को और 2 से 1 को आ सकता, नहीं तो 4 से 2 को जंप हो गए 2 से 1 को आ सकता। ऐसा सेवरल ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो इसीलिए सेवरल लाइंस फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, H2 when subjected to electric discharge, it splits into the atom, and the electron which is present in the ground state absorbs the energy and that goes to the excited level. Excited electron is unstable, it again comes back to its ground state, that may come directly or by intermediate step. Like this several transitions are possible, therefore
several lines are formed in the hydrogen spectra. ये लिख के फिर उसके बाद में ये सीरीज लाइंस के फॉर्मेशंस के बारे में आपको लिखना है. ये है ये यहाँ पे. ठीक है ठीक है ठीक है. सेवरल लाइंस कौन से है भाई? पहले इधर देखिए बेटा. व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गया था एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स टू दी फर्स्ट शेल, ये किस में भी नहीं आया भाई, फर्स्ट डायरेक्ट फिर वापस आ गया, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती. ज्यादा एनर्जी रिलीज होने से जो लाइन फॉर्म होता, वी आर स्टडीइंग अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा बोले तो नीचे से ऊपर गए सो नहीं देख रहे हैं, ऊपर से जब नीचे आ रहा जो लाइन फॉर्म हो रही इसके बारे में पढ़ रहे हैं. This is about the hydrogen emission spectra. I am explaining you. When the excited electron jumps from higher energy level to first shell, कौन सा भी excited electron रहने दो, N1 is equal to 1 है, समझिए आप. lower energy level को N1 बोलते हैं. Excited electron when jumps to the first shell, excited electron जो हुआ, excite जो electron हुआ, अगर first shell को आ गया, if N1, that is N is equal to 1, line is formed in which region? alpha अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइन फॉर्म होता, यूवी रीजन में लाइन फॉर्म होता. दैट लाइन इज कॉल्ड एज द लाइमन. अगर एक एटम रहते एक लाइन आती है, ऐसा सेवरल एटम्स रहने की वजह से आपको सेवरल लाइंस फॉर्म हो रहे हैं आपको. तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक एटम के बारे में बोला था मैं, और एक एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता, इधर भी वापस आता. तो वट एवर इट में भी आपको N1 इज इक्वल टू 1 लेना है और N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता भाई. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल को जंप करा तो लाइन फॉर्म होती, और जो लाइंस आ रहे हैं उसको क्या बोलते बोले तो लाइमन सीरीज बोल के बुलाते. ये लाइमन सीरीज कौन से रीजन में, ये जो लाइंस है आपको कहाँ दिखते हैं, कहाँ विजिबल होते हैं आपको बोले तो अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखते हैं आपको. द सेकेंड सीरीज इसके बारे में, when excited electron jumps to second shell, excite हुआ सो इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड शेल में जंप हो गया, सेकेंड शेल को आके रुक गया, तो जो भी एनर्जी आ रही जिसकी वजह से जो लाइन फॉर्म होती, द लाइन विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसिशन, दैट मीन्स व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द सेकेंड शेल, द लाइन इज फॉर्म्ड दैट इज विजिबल इन विच रीजन, विजिबल रीजन में लाइन फॉर्म होती. और ये सेवरल लाइंस रहते हैं, इसको क्या बोल के बुलाते हैं, बॉमर. ऑब्जर्व करें, इसीलिए ये जो है इसको बॉमर सीरीज बोल के बुलाते हैं. थर्ड वन, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप्स टू थर्ड शेल, थर्ड शेल को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप करा तो ये नियर इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन बोल के लिख सकते हैं आप. तो सेवरल लाइंस रहते हैं, एयर लाइंस को क्या बोल के बुलाते, पैशन बोल के बुलाते, पैशन सीरीज. Now then when excited electron jumps to the fourth shell, several lines are formed in which region, line is formed in the middle infrared region. That lines are called as the bracket series बोल के बुलाते हैं. Now next one, when excited electron jumps to the fifth shell, excite जो इलेक्ट्रॉन वो fifth shell को जंप हुआ, तो जो लाइन फॉर्म होती वो फार इंफ्रारेड रीजन में मिलती, आपको दिखती. ऐसे नंबर ऑफ लाइंस को मिला के क्या बोल के बुलाते, पी फ्रंट सीरीज बोल के बुलाते. देयर आर 5 लाइंस आर फॉर्म्ड इन दिस. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. when hydrogen is subjected to electric discharge, H2 splits into the atom, and the electron which is present in the hydrogen atom, which is present in ground state, absorbs the energy and goes to the excited level. एक्साइट हुआ भाई, एनर्जी को लिया तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. इट इज अनस्टेबल, फिर वो अपने ग्राउंड स्टेट को आता थोड़ी देर के बाद. जब ग्राउंड स्टेट को आ रहा वो वापस, तो डायरेक्ट आ सकता. डायरेक्ट अगर आ गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, इसीलिए वो ज्यादा एनर्जी रीजन में दिखती है आपको, यूवी रीजन में. उसको लाइमन सीरीज बोल के बुलाते हैं. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में जंप करा, ऐसे पूरे 5 सीरीज के नेम्स लेना है आपको. सेकेंड शेल में जंप करा तो विजिबल रीजन में लाइन दिखती, बॉमर सीरीज. थर्ड शेल में जंप करा तो नियर इंफ्रारेड, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फन सीरीज. और द वेव नंबर ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज कैलकुलेटेड विद द इक्वेशन कॉल्ड एज द रिडबर्ग्स इक्वेशन. वो रिडबर्ग्स इक्वेशन है, वो म्यू बार इज इक्वल टू 1 by lambda into r 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the equation called as the Rydberg's equation.
With the help of this equation, we can calculate the wave number and wavelength of the each spectral line. Now then you have to draw the spectral diagram उतारना है आपको. Spectral diagram में आपको पहले क्या करना है, यहाँ न्यूक्लियस है समझना है आपको. फिर इसके बाद में फर्स्ट शेल, दिस इज द फर्स्ट शेल, यहाँ से नीचे से लेना है फर्स्ट शेल. Now then फर्स्ट और सेकंड शेल दोनों के बीच में गैप ज्यादा रखना है आपको. n इज इक्वल टू ये 2 सेकंड शेल है. उसके बाद थर्ड शेल थोड़ा करीब करते जाना, n इज इक्वल टू 3. उसके बाद फोर्थ शेल, n इज इक्वल टू 4. उसके बाद फिफ्थ शेल, n इज इक्वल टू 5. उसके बाद में सिक्स शेल, उसके बाद सेवन शेल. सेवन शेल्स डालना, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7. ऐसे आपको सेवन शेल्स ड्रा कर लेना है बेटा. के नीचे से यहाँ से लेना है नंबरिंग, नीचे से 1 2 3 4 5 6. नाउ देन व्हाट एवर इट मे बी, एक एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को जंप हुआ तो वो लिखना है आपको. तो हायर लेवल से आपको लोअर लेवल तक लाके फर्स्ट शेल तक रोकना आपको. n इज इक्वल टू 1 पहले यहाँ ले लेना, n इज इक्वल टू 1. ऐसा एक लाइन डाल लेके आप क्या करना, हायर लेवल से ऊपर से लेके आके यहाँ रोकना. फिर 6 टू क्या करना, 1 लेना. फिर 5 टू 1 लेना. फिर 4 टू 1 लेना. फिर उसके बाद 2 टू 1 लेना. अब ये लाइन को क्या बोल के बुला रहे हैं अपन, जब से मैं समझाया आपको, दिस इज कॉल्ड एज द लाइमन सीरीज और इस यूवी रीजन बोल के लिख के छोड़ देना है. तो देन फिर उसके बाद में एक लाइन n इज इक्वल टू 2 में ऐसा डाल लेना. डाल लेके फिर हायर रीजन से, हायर एक्साइटेड स्टेट से यहाँ से यहाँ तक. और नेक्स्ट वन हियर, ये इसके बाद 4 से, उसके बाद 3 से 2 तक लाके रोक देना. ओके, इसको क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोल के बुलाते हैं. इट इज ऑब्जर्व्ड इन विच रीजन, विजिबल रीजन में दिखता है. Now then excited electron यहाँ थर्ड शेल, और एक स्टेप ऊपर जाना, थर्ड शेल में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. Now then फिफ्थ टू, देन यहाँ तक आ गया. So this is called as the Paschen series है, Paschen series. Now then फोर्थ शेल में आ जाना. देखिए मैं बढ़ाते जा रहा हूँ शेल में. n इज इक्वल टू 1 2 3 4. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर से इधर से, इसको ब्रैकेट सीरीज बोल के बुलाते हैं. देन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको पी फंड सीरीज. ये तीन भी इंफ्रारेड रीजन है, नियर इंफ्रारेड, ये मिडिल इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड, ये आईआर रीजन में दिखते हैं. दिस इज अबाउट द स्पेक्ट्रल डायग्राम. इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड एक्सप्लेनेशन टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. नाउ देन सेकंड क्वेश्चन, write about the quantum numbers and their significance. Quantum numbers, there are 4 quantum numbers are proposed. Quantum numbers are proposed to locate the address of electron. That gives the information about electron. असल quantum number किसको address करते हैं, किसके बारे में है quantum numbers? Quantum numbers explain about the electron. Electron के बारे में address करते हो. Now next, how many quantum numbers are proposed? There are 4 quantum numbers are proposed. First one is the principal quantum number. Second one is the angular momentum quantum number, azimuthal quantum number, azimuthal quantum number. And the third one is, what is that quantum number? Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. And the fourth one is the spin quantum number. Quantum numbers use the information about what? Electron. बोल के ये there are 4 quantum numbers are proposed. ऐसा ये लिख लेना है आपको. तो देखिए हर क्वांटम नंबर में आपको क्या लिखना है, 4 चीजें लिखना है आपको याद रखना. फर्स्ट वन आप क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या कौन से भी क्वांटम नंबर में ये 4 चीजें लिखना है आपको, याद रख लेना. आप हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, याद रख लीजिए. So in each quantum number you have to mention these 4 things. What is the first one? First one is who proposed that quantum number. कौन propose करे वो लिखना है आपको. No. Second one, what is the letter? कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते वो लिखना है, वो क्वांटम नंबर को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और थर्ड वन क्या है, कौन से वैल्यूज है, उसके वैल्यूज क्या है भाई वो लिखना है.
और नेक्स्ट वो क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कई को प्रपोज करे वो क्वांटम नंबर, किसके बारे में समझाता वो लिखना है। सो इन ईच क्वांटम नंबर यू हैव टू राइट दिस फोर थिंग्स। हाफ हाफ मार्क रहता है चार चीजों को लिखे तो एक क्वांटम नंबर 2 मार्क्स, चार क्वांटम नंबर्स 8 मार्क्स के रहते हैं, नहीं तो कभी 3 क्वांटम नंबर से पूछता है 8 मार्क्स दे देता आपको। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन प्रपोज करे, अब आप लोग बोलिए, हु प्रपोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रपोज बाय द साइंटिस्ट होम नील्स बोर। नील्स बोर प्रपोज दिस क्वांटम नंबर। फिर सेकंड वन इज ए सेकंड postulate, what is the letter to represent this quantum number? This quantum number is written with the letter n, n से represent करते हैं। This is the second important point in this. Now next, what are the n values? N values are the positive integral values 1 2 3 4. That means what is the n shell numbers बोले ऐसा ही, first second third fourth shell. So 3 points हो गए इसके अंदर। Now next, what is the important? It gives the information about the electron present in which shell, कौन से shell में electron फिर रहा। n अगर 1 रहा तो वो first shell का है, n अगर 2 रहा तो वो second shell का है, इसके बारे में information। अगर n की वैल्यू मालूम हो गई, if you know the n value, then we can calculate the radius of that orbit, मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पे फिर रहा वो रेडियस कैलकुलेट कर सकते। Now next, energy of electron, energy of electron can be calculated. These are the important significance of this quantum number. Once again I am repeating, principal quantum number is proposed by the scientist Niels Bohr. It is represented with the letter n. N values are 1 2 3 4. Then what are the importance of this principal quantum number? First one, it gives the information about the electron present in which shell, कौन से shell में electron रहता और कौन से shell में electron रहता इसके बारे में समझाता। Now then, by knowing the shell number we can calculate the radius of orbit, we can calculate the radius of orbit. Next we can calculate the energy of electron. This is about the first quantum number. Next, second quantum number. What is that quantum number? Angular momentum quantum number or azimuthal quantum number. Who proposed this quantum number? First one, what is the first postulate? Sommerfeld proposed this quantum number. Now next one, what is the second point? Just I was told you know what is the second point, you have to write what is the letter to represent this quantum number. What is the letter we are using to represent this quantum number? You have to write the small l. Now l values are depends upon the n values. L values are depends on n values, and L values are starts with 0, 1 2 3 4 like that. Now next one, these 3 points are over. Now next, what is the fourth point left? चौथा पॉइंट क्या है भाई, ईच क्वांटम नंबर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखना है आपको। तो इंपॉर्टेंस में फर्स्ट वन क्या है, इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वी शेप एंड एंगुलर मोमेंटम देता हो। उसके बाद में सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। इट गिव्स दी, आप क्या करना है ये लिखना है, सब मेंशन नहीं करे तो नहीं करे। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस, इट गिव्स दी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में समझाता। इफ एल इज इक्वल टू 0, यस ऑर्बिटल ऐसा मेंशन करिए, यस ऑर्बिटल है, शेप ऑफ द यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप, ये लिखना आपको। इफ एल इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है वो, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप क्या है भाई, ये डम्बल शेप है, डम्बल शेप। नेक्स्ट, इफ एल इज इक्वल टू 2, दैट इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का कौन सा शेप है, डबल डम्बल शेप है, डबल डम्बल शेप। इफ एल इज इक्वल टू 3, दैट इज एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल, what is the shape of the f orbital, that is the fourfold axis or discrete shape है। So this is about the first significant. Now next, second significant, it gives the fine spectra of atom, fine spectra. Due to the presence of subshells,
each line splits into the 2 or 3 lines, that is called as the fine spectra. ये सब डिटेल से जरूरत नहीं है आपको. It gives the shapes बोल के लिख दीजिए आप. It gives the fine spectra of atoms. This is about the significance. And second quantum numbers के बारे में समझाया मैं. Third quantum number, that is what magnetic quantum number है. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. तो सेम वही फॉलो होना है आपको. व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट इन दिस? हु प्रपोज दिस क्वांटम नंबर? ये साइंटिस्ट का नाम है लैंडे प्रपोज दिस क्वांटम नंबर. फिर उसके बाद में व्हाट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू राइट? सेकंड थिंग, व्हाट इज द लेटर टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटम नंबर? इट इज रिप्रेजेंटेड विथ द लेटर m. Now what are the m values? m values are depends upon l values. Okay, यल वैल्यूज के बगैर m वैल्यूज नहीं आते और यल वैल्यूज n वैल्यूज पे डिपेंड होते. इफ l इज इक्वल टू 0 इट गिव्स द ओरिएंटेशन रिलेशन. न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन किधर फिर रहा इसके बारे में समझाता. ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको. इफ l इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 0, m वैल्यू 0 रहती. l इज इक्वल टू 0 किसको रहता भाई? s ऑर्बिटल को रहता. s ऑर्बिटल को 0 ओरिएंटेशन रहता. ये वैल्यूज के बारे में समझा रहा हूं मैं. m वैल्यूज अब देखिए थोड़ा क्लियर से लिख देता हूं मैं. फर्स्ट पोस्टुलेट, लैंडे प्रपोज दिस क्वांटम नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड विथ लेटर m. m वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं. m वैल्यूज आर -l2 प्लस l, ये लिखना, इंक्लूडिंग विथ 0. इंक्लूडिंग विथ 0, 0 से मिला के. एग्जाम्पल, इफ l वैल्यू 1 है समझिए, m वैल्यूज क्या रहते हैं? -1, 0 प्लस 1, ऐसा लिखना. This is about the third postulate and this is the significant. बेटा मैं significant explain कर रहा हूं मैं. Now in the significant क्या है भाई? It gives the orientation of orbital. s orbital l value 0 है, m value 0, single एक ही एक orientation है. One orientation is possible around the nucleus. If l value is 1, देखिए बेटा m वैल्यूज क्या क्या रहते हैं? m वैल्यूज -1, 0, +1 ऐसा रहता. ये तीन वैल्यूज है. तो p ऑर्बिटल is oriented around the nucleus in 3 axes. One is px and second one is py and third one is the pz. ये ओरिएंटेशंस के बारे में लिख देना, डायरेक्ट लिख देना. If l value is equal to 2, how many orientations are possible? m values are -2, -1, 0, +1 and +2. 5 orientations are possible for the which orbital? D orbital. For the f orbital, l value is equal to 3. m values are -3, -2, -1, 0, +1, +2 or +3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orientations are possible for the f orbital. It explain about the orientation of orbital and it explains the Zeeman and Stark effect. What is Zeeman effect and Stark effect? Zeeman, a important VSAQ है. Zeeman and Stark effect. What is the Zeeman effect? Splitting of the spectral lines. Spectral lines जो है split होते in which field? Magnetic field. ये लिखना है. Magnetic field में spectral lines split होने को बोलते हैं. Splitting of the spectral line. Splitting of the spectral lines in magnetic field. Magnetic field is called as Zeeman effect. What is Stark effect? Splitting of the spectral line. Magnet की जगह आप क्या लिखते हैं? Electric field बोल के लिखते हैं. Splitting of the spectral line in electric field is called as Stark effect. This is about the third quantum number, and the fourth one is the spin quantum number. Spin quantum number. Uhlenbeck and Goudsmit proposed this quantum number. It is represented with first one who proposed this? Uhlenbeck. Uhlenbeck and Goudsmit proposed this quantum number. This is the name of scientist. Now next, it is represented with the letter S. S से represent करते हैं इसको. Now then third one, S values are
यस वैल्यूज क्या है भाई? ये प्लस हाफ एक हो सकता और एक माइनस हाफ। नाउ नेक्स्ट अबाउट द सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वांटम नंबर? फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन, इलेक्ट्रॉन कैसा? इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गोल फिर रहा तो अपने पे गोल ऐसा फिर लेते हुए न्यूक्लियस के गोल फिरते रहता। तो ऐसे टाइम पे दो स्पिन्स पॉसिबल है। फर्स्ट वन ऐसा फिर सकता हो, इसकी वैल्यू प्लस हाफ रहती, और एक पॉसिबिलिटी है ऐसा उल्टे सिंप में ऐसा फिरते रहता और इसकी वैल्यू माइनस हाफ रहती। So this is the significance. First one, it gives the spins of electron. Now next, magnetic properties of substances. Magnetic properties है, पैरा है या डाया है, इसके बारे में समझाता है। So this is about the 4 quantum numbers. 19th क्वेश्चन के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया हमें। 19th में जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 में दो क्वेश्चंस आ सकते, वो बोर्ड्स पॉस्टुलेट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या नहीं तो क्वांटम नंबर है। दो में से पक्का एक क्वेश्चन रहता है। यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस इन द 19th क्वेश्चन। 19th में दो में से एक क्वेश्चन कैसा भी रहता। Now next, I'm explaining you 20th question. 20. In the 20 question, I'm giving you three important questions. First one, how the elements are classified into SPD of blocks, block classification. And the second one is what? Define IE1 and IE2. IE2 and factors affecting IE values. What is the third question in this? In this, periodic properties. Periodic properties से क्वेश्चन पूछता, how that is varies in groups and periods. There are three questions are there. That is from second chapter. Second chapter से तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन से क्वेश्चन रहता। तो ये पांच क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो पक्का आप LAQs अटेंड कर सकते। दो LAQs अच्छा लिख लिए आप तो पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपको मैक्सिमम पास हो जाते आप। तो फर्स्ट वन, SPDF ब्लॉक्स के बारे में समझा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, SPDF ब्लॉक्स क्लासिफिकेशन। ब्लॉक्स मतलब एक हिस्सा, पीरियाडिक टेबल का ढांचा एक हिस्सा। देखिए पीरियाडिक टेबल ऐसा है, दिस इज द पीरियाडिक टेबल। इसमें कितने पार्ट्स है, कितने हिस्से है, इसके बारे में लिखो बोल रहा हूं। तो इसमें चार पार्ट्स है। सो दिस इज द लेफ्ट साइड पार्ट। इधर बाजू यस ब्लॉक एलिमेंट्स को रखे, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। इधर बाजू राइट साइड का हिस्सा ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है, बीच में D ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके बाद में F ब्लॉक एलिमेंट्स है, नीचे के हिस्से में F ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आपको पहले क्या लिखना है, ये डेफिनेशन लिखना, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले लिया भाई, लिथियम ले लिया आप। चलो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s1 इज द कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, वो देखना आप यस ऑर्बिटल में है तो उसकी प्लेस कहाँ है बोले तो यस ब्लॉक में है। चलो भाई बोरान लिया मैं, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 5 है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, उसके बाद में कितने हो गए? ये 4 हो गए, 2p1। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा आपको? p ऑर्बिटल में दिख रहा। तो इसकी जो पोजीशन बनती है वो कहाँ है, कहाँ रखते हैं उसको? p ब्लॉक राइट साइड में रखते। और जिंक वगैरह ले लिया तो d ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखता, तो जिंक को कहाँ रखना है आपको? d ऑर्बिटल में। वॉट एवर इट मे बी, based on the presence of or based on the entry of last electron into the various orbital, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है देखना। based on the presence of the last electron in various orbitals, elements कितने की एलिमेंट्स है? there is about 120 elements are there. all those elements are classified into 4 blocks. ये इसका हिस्सा, ये उसका हिस्सा, बोल कैसा 4 blocks को क्लासीफाई करें पीरियाडिक टेबल को। So elements are classified into 4 blocks. First one S block elements, P block elements, D block elements, and fourth one is the F block elements. Based on the presence of the last electron in the various orbitals, elements are classified into the 4 blocks: S block, P block, D block, and F block. So हर ब्लॉक में आप क्या क्या करना है? In each block, first you have to remember this one. ब्लॉक का डेफिनेशन लिखना, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ईच ब्लॉक।
नाउ सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है भाई, कितने ग्रुप्स है उसमें, कितने कॉलम्स है लिखना है इसमें हर ब्लॉक में। ये पैटर्न याद रख लेना आप। डेफिनेशन कितने ग्रुप्स है, थर्ड वन इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसकी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और नेक्स्ट वन वो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, थोड़े प्रॉपर्टीज है उसको मेंशन करना है। ये पैटर्न से जाना है आपको हर ब्लॉक में। जैसा मैं क्वांटम नंबर्स में बोला, आपको 4 पॉइंट्स लिखना है। हु प्रपोज दैट क्वांटम नंबर, कौन से लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से वैल्यूज है, फिर देन व्हाट इज द फोर्थ वन, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे भी ब्लॉक क्लासिफिकेशन में पहले क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, हैव टू राइट द डेफिनेशन। सेकंड वन, हाउ मेनी ग्रुप्स, उसमें कितने लाइंस है वो लिखना है, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उनके प्रॉपर्टीज क्या है वो एलिमेंट्स के लिखना है। अब इधर समझा रहा हूं, देखिए भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा एक ही जगह लिख दे रहा हूं मैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यही पैटर्न में जाना है। फर्स्ट वन इज व्हाट, डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन, दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स in which lost electron, that is called as differentiating electron, differentiating electron, lost electron को बोलते हैं lost electron, lost electron is called as the differentiating electron, in which differentiating electron, electron present in which orbital, s orbital, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में है तो वो एलिमेंट्स, those elements in which differentiating electron is present in s orbitals, s orbital ही लिखिए, called or called as क्या बोल के बुलाते हैं भाई, s block elements बोल के बुलाते हैं। चलो अब यहाँ पे बोलना, डेफिनेशन लिखना, एवरीथिंग इज सेम, सेम पैटर्न में जाते हैं आप। Those elements in which differentiating electron is present in which orbital, p orbitals, p orbitals, those are called as which block elements, p block elements। क्या प्रॉब्लम है ना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है भाई, डेफिनेशन लिखना, दोज एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की जगह n-1 डी ऑर्बिटल लिखे तो ठीक रहता है, n-1 डी ऑर्बिटल्स, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n-1 डी ऑर्बिटल, दोज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या लिखते हैं आप, दोज एलिमेंट्स, सेम वही पैटर्न में जाना है आपको, यू हैव टू राइट in the same pattern definition, those elements in which differentiating electron is present in n-2 f orbitals, those are called as the f block elements। this is the first point। block classification में एक के नीचे एक लिखना है आपको। first point is the definition, second point ये ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है, कितने खड़े लाइंस है। यस ब्लॉक में देखिए लेफ्ट साइड में 2 लाइंस है। इन दिस ब्लॉक क्या लिखना है भाई, टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट, कौन से है भाई वो मेंशन करना, 1a ग्रुप एंड 2a ग्रुप, 1a ग्रुप एंड सेकेंड वन क्या है 2a ग्रुप। 1a ग्रुप का नाम दो, अल्कली मेटल्स है, इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोल के बुलाते, साथ में इनका कॉन्फ़िगरेशन भी डाल दो, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये थर्ड पोस्टुलेट हो, सेकेंड पोस्टुलेट हो गया। अब यहाँ पे लिखो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स रहते हैं आपको मालूम है, राइट साइड में ये हिस्सा राइट साइड का है। देखिए 1-2 होने के बाद में, अब देखिए आप कैसा याद रखना है आपको, कितने ग्रुप्स रहते हैं। एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 है, 2 ग्रुप्स रहते हैं इन द एस ऑर्बिटल, 2 accommodation, मतलब we can accommodate 2 electrons in the s orbital, therefore 2 groups are present। in the p orbital we can accommodate how many electrons, 6 electrons, that's why how many groups are there in the p block, 1 2 3 6 groups रहते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 6 groups are present। तो यहाँ पे लिख देना भाई, in this block how many groups are present, in this block 6 groups are present, which are those। चलो 1-2 होने के बाद में क्या रहता, थर्ड ए ग्रुप रहता, उसके बाद फोर्थ ए ग्रुप रहता, फिफ्थ ए ग्रुप रहता, उसके बाद सिक्स्थ ए ग्रुप एंड देन सेवेंथ ए ग्रुप,
उसके बाद में जीरो ग्रुप और एथ ग्रुप, दोज आर बोल के लिख के थर्ड ए फोर्थ ए ऐसा पूरा लिख लेना, थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए ग्रुप एंड सिक्स्थ ए ग्रुप एंड सेवेंथ ए ग्रुप, नाउ देन जीरो ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप किससे शुरू हो रहा, बोरॉन से शुरू हो रहा, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई यहाँ NS2 के बाद में NP से शुरू करना, भाई NS2 NP1 ऐसा डाल लेते जाना। फिर उसके बाद में फोर्थ ए ग्रुप स्टार्ट्स विद दी कार्बन, सो थर्ड ए ग्रुप बोरॉन से, उसके बाद कार्बन, ये नाइट्रोजन एटम्स मालूम है आपको, उसके बाद ऑक्सीजन आता, उसके बाद में फ्लोरीन आता, उसके बाद में यहाँ पे क्या आता आपको, नियॉन आता। सो वही मेंशन करना, फोर्थ ए ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली, फोर्थ ए ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP2 भरते जाना आप शेल्स। उसके बाद में फिफ्थ ए ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, निडोजन्स बोलते हैं, NS2 NP3 डाल लेना। सेवेंथ ए ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, फिफ्थ ए हो गया। सिक्स्थ ए ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली ने तो चाल्कोजेंस बोलते हैं। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP4 इज द कॉन्फ़िगरेशन। सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं या फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 डालना। और नेक्स्ट जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है उसको नोबल गैसेस बोल के बुलाते, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपन दो पॉइंट्स लिखे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे कितने ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, इन लेफ्ट साइड देयर आर 2 ग्रुप्स आर देयर, in right side there are 6 groups are there, those are I have written clearly at here, and their configuration also written. Now see that in the D block also you have write how many groups are there. Once again I am writing this, in this बीच के हिस्से में कितने ग्रुप्स है भाई, 10 groups are present and 4 series are present, 4 series are present। वो 10 ग्रुप्स कौन से है भाई, ये लिखना 1B 2B, कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को B से लिखते हैं, 1B 2B 3B 4th B 5th B 6th B 7th B, and in the 8th B, in the 8th B how many columns are there, how many subgroups are there, 3 are there, that means 7 plus 3, how many groups are there, 10 groups are there and 4 series are there बोल के 3D 4D 5D 6D 4 सीरीज रहते हैं बोल के लिखना है भाई, इतना लिखना है इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट आखिर कितने ग्रुप्स है उसमें लिखना, और यहाँ पे क्या लिखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, इसमें तो ग्रुप्स नहीं बने भाई, 2 सीरीजेस है बोल के लिखना। इन दिस 2 सीरीजेस, आड़े लाइंस को बोलते हैं सीरीजेस, इन दिस 2 सीरीजेस आर देयर 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। 4F सीरीज को क्या बोल के बुला रहे हैं, लैंथेनॉइड सीरीज बोल के बुलाते हैं। 5F सीरीज को क्या बोल के बुलाते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज बोल के बुलाते हैं। So this is about the second point. First point is the definition, second point is the how many groups are there, and what is the third point? Third point क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना। चलो S P D F, what is the third point in this इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। चलो पूरे ब्लॉक का मिलाओ, 2 ग्रुप्स रहने से NS1 to 2 लिखना, P ब्लॉक एलिमेंट से NS2 भर गया भाई, होने के बाद में NP 1 to 6 लिख लेना है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक हो गया। और डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1d डाल लेना, कितने रख सकते हैं अपन, 10, 0 to 1 to 10 डाल लेना। उसके बाद में NS2, दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डी ब्लॉक। एंड एफ ब्लॉक कैसा लिखना है आपको, n-2f, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपन, 14, 1 to 14 डाल लेना। फिर उसके बाद में अभी तक इसमें डी ऑर्बिटल में 0 और 1 ईच है, तो वैसे लिखना आप NS2 कॉन्फ़िगरेशन, याद रख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अलग से VSAQ में भी आ सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, SAQ में भी आ सकता है, चारों के कॉन्फ़िगरेशंस लिखो बोलकर। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एंड द लास्ट point is left, in each block you have to write 4 things. First one is the definition, and second one is the how many groups are there, and third one is electron configuration, and last one is property you have to mention, properties। अब प्रॉपर्टीज में जब लिखते हैं आप देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सॉफ्ट मेटल्स बोल के लिखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे डी ब्लॉक में क्या लिखना है आपको, हार्ड मेटल्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लिखना है आपको। और एफ ब्लॉक में क्या लिखना है आपको मालूम है, रेडियो एक्टिव मेटल्स, देखिए पूरे मेटल्स ही लिख रहा हूं मैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स बोल के लिखना है आपको। पी ब्लॉक में क्या लिखना है, सम और मेटल्स, नॉन मेटल्स भी है
और मेटल्स भी है और मेटालॉइड्स भी है बोल के लिखना है इसको। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसके अंदर, रेडियो एक्टिव मेटल्स है, डी ब्लॉक हार्ड मेटल्स है, और ये नॉन मेटल्स मेटालॉइड्स है, और ये सॉफ्ट मेटल्स है। और एक एक प्रॉपर्टी भी दिखे तो अच्छा। तो ये कौन से एजेंट्स है? रेड्यूसिंग एजेंट्स फॉर्म्स विच कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं रेड्यूसिंग एजेंट्स है, और इलेक्ट्रॉन ये देने भी वाले हैं क्योंकि नॉन मेटल्स मेटल्स मेटालॉइड सब है। तो ये आयोनिक और कोवेलेंट दोनों कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, इन विच रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आयोनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर और एक एक दो प्रॉपर्टीज डाली है। हार्ड मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के अलावा इट एग्जिबिट कलर्स बोल के लिखी है, इट एग्जिबिट्स दीज एग्जिबिट्स पैरा फेरोमैग्नेटिज्म बोल के लिखी है, दीज आर यूज्ड एज द कैटलिस्ट बोल के लिखी है आप। सो ये प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के हो गए। दीज आर द रेडियो एक्टिव मेटल्स एग्जिबिट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना डाल के लिख दीजिए आप, खत्म। ये एसपीडी ऑफ ब्लॉक्स का क्लासिफिकेशन हो जाता। Inshallah, we'll continue in next class. IE1, IE2 and remaining 2 questions I will explain in next class, inshallah. Assalamu alaikum.